Appreciated. Okay, sir. No, Reading you too. Are you trying to say something? Victor Tango Alpha Bravo Charlie. I think that first name would be Hydra. Reading you too, actually, not receiving you properly. Wait 1 minute. Ha ha ha. Now, sir, how do you read? Ah, reading you five now. Yes, go ahead. Sir, you have to give Mhm. plan first. Okay, sir. Which chart Uh-huh. do you uh, sir, although chart of new one. Again, reading you too. क्या है चार्ट? Okay, sir, I'm uh, chart sir older use करने हैं new वाले older use करते हैं हाँ ठीक है, ओल्ड वाला. ओके. okay sir. नहीं. Chart number 3 sir. Again reading you too. Can you drop a message through chat box? Again reading you too. Now sir, now sir, how do you read? Reading you four. Yes. Okay sir. I'm uh, chart number 3 sir. ठीक है. नंबर थ्री. India अच्छा, you are giving a 1990. plan or what? Yes, I You am are giving giving a. plan. अच्छा, नहीं 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 नहीं. We are not going for mock for now. अभी हम लोग mock पे नहीं जा रहे हैं. Right now we will practice part 2 question. ठीक है, part second. ठीक है. Okay, okay, part हाँ. second. Yes yes yes. We are not doing mock for part 1 now. हम लोग पार्ट 2 का क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करेंगे पहले, बिकॉज प्रायोरिटी पे उसको फिनिश कर लेना है. एंड देन विल कीप गोइंग ऑन मॉक. ठीक है. टिल द टाइम आप पार्ट 1 के क्वेश्चंस Okay, प्रैक्टिस करते रहिए एट योर ओन. एंड you are doing a very nice thing that daily you are doing practicing in daytime. I am seeing in these days, and you are asking doubts through WhatsApp. Very good decision. Nice one. I really appreciate that you are doing okay. this, and I really appreciate. This is the right way to practice. Good one. Yes, So sir. keep. Same thing. Yes, sir. Previous time also I use same thing. Very good. No, this one is the good thing, because if you want to practice, if you won't come have doubt, then how anyone can ensure, or how I can assume your performance. Even you can assume your performance by doing this. That whatever the thoughts you are getting, if that is getting validated by someone, then you feel confident, right? This is a normal Yes, nature. sir.
ऑफ ह्यूमन, कि आपने कुछ सोचा, अगर उसको कोई वैलिडेट कर दे या उसको कोई वेरीफाई करके डन बोल दे तो लगता है कि यस, योर कॉन्फिडेंस विल बी लिटिल अपसाइड. Yes, sir. So I really appreciate that. Now we'll see the questions of part second first. ठीक है? Question of part second. So, For that, ठीक है. Okay. Now let me know what is avionics. What do you mean by avionics? And what are the items which consist of avionics items in an aircraft? एयरक्राफ्ट में हम जब एविनिक्स बोलते हैं तो क्या क्या आइटम्स, क्या क्या इक्विपमेंट उसमें आते हैं, क्या मतलब है उसका? avionics मतलब सर और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंस्ट्रूमेंट आइटम। सर जो इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, जो एयरक्राफ्ट में इंडिकेशंस के लिए यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए यूज होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स एवियोनिक्स के अंदर आएंगे। Very good. Any other station? Any other station? Your views? If someone will ask, what do you mean by avionics? क्या होता है avionics? और आपके एयरक्राफ्ट में avionics बोलने से क्या क्या आइटम है? तो how you will define? Alpha Juliet Delta Sierra Hotel Alpha. Anyone? Yes, sir. Go Sir, ahead. avionics means this is electronic component, electronic system, electrical system refer to the aircraft. Communication system, station system, flight controls, and including electrical system and if a electronic flight system and system. ठीक है. More or less both are right. ठीक है. Generally the same thing. Avionics by the abbreviation it is understood as aviation electronics. ठीक है. So mainly the electronics component or electronics equipment that we are using in aircraft, that is known as avionics system, which consists of three type of instrumentation system. How? Electrical system, instrument, and radio navigation. ESISRN. Electrical system. ठीक है. Example of electrical system: generator. ठीक है. Bus bar, switch, CB, connectors. ठीक है. These items are electrical items. Wire, relay. ठीक है. And instrument system consists of display plus electronic line replaceable units, LRUs. ठीक है. जिसमें आपके आगे एयर स्पीड इंडिकेटर, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, जायरो, ठीक है, ऑटो पायलट, FMS, like this. ठीक है. Then it comes radio and navigation equipments or radio and navigation systems. The equipment or instruments which is operating on or which is being functioned by using radio frequencies. ठीक है. For an example, weather radar. ठीक है. Transponders, DME, getting it? Radio altimeters, communication system सारे VHF, HF, data link, CPDLC, GPS, करेक्शन GPS तो नेविगेशन में आएगा. फिर नेविगेशन सिस्टम में क्या सब आएगा? GPS, FMS. ठीक है. और क्या क्या है नेविगेशन सिस्टम में? INS, IRS, VOR,
ठीक है। डीएमई भी समटाइम्स NDB कम्स एज ए, हाँ, और क्या है, NDB व्हाट NDB एनडीबी, नॉन नॉन डायरेक्शनल डायरेक्ट बीकन्स, इसको एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं क्या? नहीं, ये सर स्टेशन पे रहता है। हाँ, वी आर आस्किंग अबाउट एयरक्राफ्ट ओनली। आईएलएस तो आ जाएगा रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स में। सो बाय द सेइंग डेफिनेशंस आप इन सारे सिस्टम्स के नाम काउंट करवाओ एग्जामिनर को। अगर आप नहीं काउंट करवाओगे, योर आंसर विल बी काउंटेड एज सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड का नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें डाउट है। सो जस्ट सिस्टम का नाम काउंट कराओ, एग्जाम्पल डेफिनेशन दो प्लस एग्जाम्पल्स, फटाफट बताओ कि क्या है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the communication system and what are the radio navigation system is being used in your aircraft? Whichever aircraft you are working on, do let me know how many systems are for communication and how many systems are for navigation categorically. Go ahead. सर सर, your screen is not visible. Screen is not being हो shared. रही है सर। ओके सर, यस क्या हो सर, रहा है? नहीं नहीं, क्या हो रहा है? शेयर नहीं हो रहा है सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, अभी करता हूँ, अभी। हाँ ठीक है। Now, going to the next question. ठीक है, avionics part was clear. ठीक है, that was audible only. And we'll move to the next, that is communication and radio navigation equipment. What are the communication equipments and what are the radio navigation equipments? Do let me know for your aircraft. कम्युनिकेशन में VHF है, VHF, HF, Telcon, Very good. Satcom, Satcom, data link. ठीक है, अकारा से CPDL से डेटा लिंक कम्युनिकेशन भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, आप लोगों ने ये देखा है CPDLC कैसा दिखता है? Anyone? yes You know sir, about? yes sir, So it's just like a WhatsApp. yes sir, ठीक है, हाँ, it's just yes like a sir, WhatsApp in aircraft system. मीन्स आपको टेक्स्ट मैसेज कुछ प्रीलोडेड मिलते हैं, कुछ आप खुद से टाइप कर सकते हो, एंड विदाउट आस्किंग ATC ऑन अ कॉल यू कैन सिंपली सेंड अ रिक्वेस्ट। उनके पास फ्लाइट प्लान पहले से होता है, दे नोज योर सिस्टम, सो यू कैन सिंपली प्रेस ऑन द बटन टैक्सी रिक्वेस्ट। ठीक है, हॉट की बने होते हैं, जस्ट यू इफ यू प्रेस टैक्सी रिक्वेस्ट, ATC को पता चल जाएगा कि दिस एयरक्राफ्ट इज आस्किंग फॉर टैक्सी इंस्ट्रक्शन। They'll also have a definite set of messages. They'll simply press that message will be delivered to you. ठीक है, so that is CPDLC, controller pilot data link communication. चलो, what about radio navigation equipments? सर VOR GPS, Go ahead, VOR DME. बताओ बताओ बताओ। ILS, GPS, automatic direction finder, radio, and area navigation, ELT, ELT. weather radar, weather radar, ठीक है, TCAS, ठीक है, आकाश और TCAS, और कुछ है?
That's good. So these are the systems which are generally responsible for the navigation. Your FMS also works integratively for the navigation system. ठीक है, integrated रहता है. Yes, very good. GPWS. रेडियो अल्टीमेट Radio altimeter. डीएमई हो गया. DMA हो गया, VOR DMA. So these were the equipments working for navigation. Now, what is aeromobile license? मैंने स्टार्टिंग में ही ब्रीफ किया था and I told कि ये पार्ट सेकेंड का है. What is aeromobile license? What do you mean by that? Go ahead. एरोमोबाइल लाइसेंस इज इशूड टू एयरक्राफ्ट ऑपरेटर को इशू किया जाता है ना. एयरक्राफ्ट को ही इशू किया जाता हाँ. है. That is being issued for particular aircraft registration. एयरक्राफ्ट ठीक है. एनी रजिस्ट्रेशन नंबर. ओके. और क्या होता है ये? कौन इशू करता है? विच एजेंसी? रेगुलेटरी अथॉरिटी. कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी? ऑफ द कंट्री. क्या है? क्या है? क्या है? ऑफ द कंट्री. रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. चलो नाम बताओ पर्टिकुलर एजेंसी का. इन इंडिया व्हाट इज दैट अथॉरिटी? डीजीसीए. नहीं, एरोमोबाइल लाइसेंस डब्ल्यूपीसी से इशू होता है. मुझे याद है, मैंने ओपन करके भी दिखाया था किसी एयरक्राफ्ट का. देखो, याद आया? यस सर. तो बताओ क्या है. चलो एरोमोबाइल लाइसेंस ये रहा. बताओ क्या है एरोमोबाइल लाइसेंस? ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे एरोमोबाइल लाइसेंस. नाउ डू लेट मी नो एरोमोबाइल लाइसेंस क्या है. व्हाट इज द एरोमोबाइल लाइसेंस? देखो, उस टाइम भी बताया था. अगेन आई एम सेइंग दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ रेडियो इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन योर एयरक्राफ्ट. ठीक है, along with the quantity and frequency that they are using. List of radio equipment available in your aircraft along with the quantity and frequency. Issued by WPC. ठीक है, issued by WPC, not DGC. ठीक है, चलो move ahead. Next question. What are the aircraft essential for your aircraft? ठीक है, कम से कम आपको क्या इक्विपमेंट दे दूं तो आप अपना जहाज फ्लाई कर लोगे. This question had been asked to me when I was in first semester of my college. फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पे ये पूछा गया था मेरे से इन कॉलेज वाइवा. तो आपको क्या सारे इक्विपमेंट दे दूं या कितने इक्विपमेंट दे दूं कम से कम, या आपके लिए एसेंशियल जो लगे, सो दैट यू कैन फ्लाई योर एयरक्राफ्ट. ठीक है, सो व्हाट आर द मिनिमम बेसिक इक्विपमेंट यू रिक्वायर? और इंस्ट्रूमेंट सर. ठीक है, जो होते हैं. क्या होते हैं? क्या होता है? एसएसआई होता है सर. हम्म. लेजर इंडिकेटर. Reading you 2.
एयर स्पीड इंडिकेटर, अल्टीमेट। So these four equipments are known as basic T, ठीक है? ASI, VSI, gyro, HSI से नहीं, gyro इंस्ट्रूमेंट में दोनों आते हैं. So ASI, VSI, altimeter plus gyro. These four makes your basic T. ASI, VSI, gyro. Gyro में ADI, HSI. ये हो गए आपके बेसिक T. ठीक है? What about basic 6? Basic 6 में कितने सारे इक्विपमेंट हैं? ये तीनों तो कहीं नहीं जाएंगे. ASI, VSI, अल्टीमीटर. ठीक है? जायरो भी वही रहेगा. What are the two additions? आप लोगों ने लगता है फिर प्रिपेयर नहीं किया. Alpha Juliet Delta, do let me know. You have told me you have prepared for that. जायरो में ADI, HSI. ठीक है. हाँ, उसके बाद रहेगा आपका कोर्स डेविएशन इंडिकेटर. ठीक है, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं, कोर्स डेविएशन इंडिकेटर को दूसरे नाम में बोलते हैं अपना, यू कैन से इट टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर, राइट? और टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर और टर्न कोऑर्डिनेटर. ठीक है. ASI, VSI, अल्टीमीटर, ADI, HSI. ठीक है, दैट योर एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर, हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर, प्लस सिक्स्थ रहेगा टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर और टर्न कोऑर्डिनेटर. ये हो गए आपके बेसिक 6. ठीक है. और बेसिक टी में 5 कौन कौन से? ADI, HSI. ठीक है, जो कि दोनों जायरो है. ASI, VSI, अल्टीमीटर. So basic T and basic 6. Now move ahead. What is air data instrument and what is air data computer? क्या होता है? एयर डेटा इंस्ट्रूमेंट्स क्या सब है? मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था in initial days of classes. What are the air data instruments? Oh, Reading it to Alpha. static हाँ. probe, आगे pitot reading probe it and to static probe. pitot probe and static probe. Are those instruments or those are sensors? Sir, air data computer calculate various data of the parameter, air speed, altitude, with help of the sensor, pitot, tube and static. ठीक है. What are the instruments which operates on air data? A, Yeah. Very good. ASI, VSI, altimeter, and sometimes you will get rate of climb indicator. ठीक है. And sometimes you also get OAT, outside air temperature indicator. चलो. What are the displays? What is PFD? What is MFD? ठीक है. What do you mean by? temperature and program. हाँ. और सर उसमें वो हीटर लगा होता है. किसमें? OAT. HDD जो है, OAT में outside air temperature. That is a thermocouple.
आउटसाइड एयर टेम्परेचर में हीटर नहीं रहता है, दैट इज ए टेम्परेचर सेंसर, थर्मोकपल। हीटर भी तो होता है, बस ये वो कहते हैं आइस के टाइम ऊपर आइसिंग होती है तो वो जो उसके प्रोब होते हैं ना, प्रोब, उस पे बर्फ ना जम जाए उसके लिए रहता है। ठीक है, दैट इज एंटी आइस मेथड। इंस्ट्रूमेंटेशन का वो पार्ट नहीं है। ठीक है, वो एंटी आइस मेथड है, ताकि उसके ऊपर बर्फ न जम जाए, नहीं तो वो हमेशा एक कोल्ड। हाँ हाँ, क्या है क्या है? वहाँ पे जो हीटर है तो फिर वो टेम्परेचर कैसे सेंस करेगा सर इसे? हाँ, वेरी गुड। न्यूट्रलाइज करने के लिए रहता है हीटर, तभी मैंने बोला ना, जहां पे वो आउटसाइड एयर टेम्परेचर लगा हुआ है, वो क्या होता है कि कई बार किसी इक्विपमेंट के साथ इस तरह से माउंट्स पे रहते हैं, तो माउंट्स पे हीटर लगा दिया जाता है ताकि न्यूट्रलाइज रहे। बाकी ये इंडिपेंडेंट रहता है, थर्मोकपल, हीटर नहीं रहता है इसमें। ठीक है। हम्म, ओके, द डिस्प्ले मेथड्स, व्हाट इज पीएफडी, व्हाट इज एमएफडी, or in your aircraft if it is ND, then do let me know about ND as well. ND क्या है? And what do you mean by FDS, Flight Director System? वो अगले में आएंगे, अभी नहीं। हाँ, चलो PFD MFD के बारे में बताओ। गो है। प्राइमरी फ्लाइट पीएफ प्राइमरी फ्लाइट एंड MFD। मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले। वेरी गुड। क्या होता है PFD MFD, कैसे इसको PFD क्यों बोला गया? इसमें सर ये जो हमको प्राइमरी एयरक्राफ्ट एटीट्यूड पता चलता एटीट्यूड पता चलता है एयरक्राफ्ट। ओके, एटीट्यूड तो MFD पे भी पता चल सकता है। Anyone, any other? Alpha Juliet Delta? इसमें सर पीएफडी प्राइमरी प्राइमरी जो कि प्राइमरी प्रोवाइड करता है हम्म एटीट्यूड, एयर स्पीड, रीडिंग, पैरामीटर ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन, प्राइमरी हम्म फ्लाइट इंफॉर्मेशन। And multi-function display indicate the navigation display such as chart या map। On the screen, अरे ये खुल गया image, sorry, on the screen it is being shared, right? So if you count 1 2 3 from any side, what will be the PFD and what will be the MFD? Number 1 वाला क्या है? किसी भी साइड से 1 2 3 काउंट करो, doesn't matter. नंबर 1 डिस्प्ले जो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। नंबर 1 डिस्प्ले पीएफडी। एंड नंबर 2 एमएफडी। MFD। ओके, ठीक है। इन दिस केस जो कंसोल पे दिख रहा है नीचे बॉटम, उसको नंबर 4 काउंट करना। देन डू लेट मी नो व्हाट आर द PFD एंड व्हाट आर द MFD। हम्म नंबर 4 को एमएफडी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 4 MFD है। और नंबर 1 पीएफडी 1 1 एंड and 3 3 PFD, पीएफडी। नंबर 2 and 4 MFD। ओके, नेक्स्ट। अभी देखो, समथिंग इज नोन एज इफिस। ठीक है, हम सबने बुक में पढ़े थे
कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम आया? कुछ नहीं, सीधा सा मतलब उसका ये था कि हमारे पास जितने क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है, हमारे पास, मेरे पास क्लासिकल वाले का फोटो मैं देखता हूँ इसे। हमारे पास जितने क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप थे, जब उनका स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन किया गया कि हमारा डिस्प्ले रहेगा, कोई भी ये एनालॉगस इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डिस्प्ले का, ठीक है। तो जैसे ही हमारे एनालॉगस इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्प्ले के मोड में अवेलेबल करवाया गया, वो कहला गया एफएस, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास जो पहले एनालॉगस इंस्ट्रूमेंट थे उसमें पॉइंटर होते थे, नंबर्स लिखे रहते थे, गेजेस रहते थे, बट डिस्प्ले पे तो आपको ग्राफिक्स दिखाना पड़ेगा, या फिर आप गेज या पॉइंटर्स बनाओगे तो उसको किसी ना किसी सिंबल के रूप में दिखाना पड़ेगा, मीन्स सिंबल जनरेटर चाहिए आपको। तो जब डिस्प्ले लाया गया तो उसमें लाया गया एक प्रोसेसर, एक सिंबल जनरेटर, या फिर इसको सिनेप्टिक जनरेटर भी बोलते हैं, सिनेप्टिक मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबल जनरेटर, एक डिस्प्ले का प्रोसेसर यूनिट और एक डिस्प्ले। इन तीनों चीजों के साथ जैसे ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेस किया गया इन एन एयरक्राफ्ट, तो उसको बोल दिया गया इफिस। तो किसी भी एयरक्राफ्ट में किसी भी टाइप का डिस्प्ले वाला सिस्टम है, हर एक डिस्प्ले वाला मेथड इफिस कहलाएगा। जैसे आप बोलने के लिए बोल सकते हो कि हमारे एयरबस में तो इकैम है, वो भी एक एफिस है, ठीक है, इकैम भी एक एफिस है। तो EFIS इज द बेसिक नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? किसी भी टाइप का डिस्प्ले का यूज करो, दैट इज अ बेसिक मेथड ऑफ इफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर फर्दर उसी में डेवलपमेंट आए, सब अपने अपने मैन्युफैक्चरर ने अपने अपने सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए, अपने अपने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन डेवलप किए। सो यू कैन सी, जिस भी पोर्शन में इंजन का इंडिकेशन आपके पास डिजिटल आ रहा है, वो हो जाता है इकास, ठीक है, इंजन इंडिकेटिंग एंड क्रू अलर्टिंग सिस्टम। आप देखो, इस स्क्रीन को देखो जो जूम किया, लेफ्ट साइड में आपके पॉइंटर्स बने हुए हैं ना, ITT मींस इंटर स्टेज टरबाइन टेम्परेचर, RPM मींस रिवॉल्यूशन पर मिनट, N1 N2 इज द क्या होता है N1 N2, हु इज गोइंग टू टेल? या फिर इंजन का जो बीच वाला शाफ्ट होता है, हाई स्पूल, स्पीड, क्या बोलते हैं उसको? हाई N1 N2 फायर नहीं है, हाई स्पीड कंप्रेसर, लो स्पीड कंप्रेसर। हाई स्पीड, यस यू कैन से। जो इंजन में बीच वाला शाफ्ट होता है ना, लॉन्गेस्ट शाफ्ट, ठीक है, वो स्पूल से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे में, सिंगल स्पूल, टू स्पूल, ठीक है। तो जो कंप्रेशर ब्लेड्स हैं और जो टरबाइन ब्लेड्स हैं, ये एक शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं। सो हाई स्पीड कंप्रेशर वाला सेक्शन N1 होता है, और लो स्पीड टरबाइन बोलो या हाई स्पीड, नहीं, हाई स्पीड कंप्रेशर, लो स्पीड टरबाइन, वो होता है N2। तो बेसिकली आपके इंजन का जब आप स्टार्टर से स्टार्ट करते हो तो इंजन ने टर्न होना शुरू हुआ कि नहीं, ये इंडिकेट करता है N1 या N2, ठीक है, कि हमारा इंजन रिवॉल्व स्टार्ट किया कि नहीं। तो आफ्टर रिवॉल्यूशन, what is the current RPM? That is your RPM indicator. Then oil temperature and oil pressure, and here you can also see fuel, total fuel on board. So these engine parameters plus, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल सर्वो डोर्स, मतलब येलो में है यानी ओपन है अपना, ठीक है, लार्ज सर्वो डोर्स ओपन है, पैसेंजर डोर ओपन है, इनबोर्ड ब्रेक लो प्रेशर, आउटबोर्ड ब्रेक लो प्रेशर। फिर देखो मैजेंटा कलर में सेट लैंडिंग एलिवेटर, ये भी आपका श्यान कलर में यानी ब्लू कलर में है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉल्ट, FDR फॉल्ट, CVR फॉल्ट, CV आउट की हो रहे होगे ना, तो फेल आता है अगर सर्किट ब्रेकर आउट है तो ये हो गया आपका कैश, इसी को बोलते हैं क्रू अलर्टिंग सिस्टम। सो इंजन इंडिकेटिंग प्लस क्रू अलर्टिंग सिस्टम, ई कैश। क्लियर? अगला, इकाम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, एयरबस वाले इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम।
सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम, तो तब तो उसका नाम ये हो जाएगा ECMS। ए से क्या है? हम्म, इधर देखो। हाँ हाँ, एयरक्राफ्ट मॉनिटरिंग। गॉट इट। तो ये देखो, हम इसमें केबिन का डोर ओपन है कि नहीं है, ठीक है, किस केबिन में किस एरिया में क्या टेम्परेचर है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, केबिन एल्टीट्यूड क्या है, ठीक है, प्लस ऑयल सिस्टम का क्या प्रेशर है, एपीयू का क्या कंडीशन है, ब्रेक का क्या कंडीशन है, हमारे रडर, ठीक है, रडर का क्या पोजीशन है, स्पॉइलर, लैंडिंग गियर का क्या पोजीशन है, स्टेबलाइजर का क्या पोजीशन है। तो ये भी तो हमने एक तरह से सेंट्रलाइज इक्विपमेंट का मॉनिटरिंग ही किया। यही हो गया आपका इकैम, ठीक है, यही हो गया आपका इकैम। सो इकैम बनाया गया था एयरबस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के द्वारा, लेकिन यूज हर कोई एयरक्राफ्ट कर सकता है। इकैश बनाया गया था बोइंग डेवलपर्स के द्वारा, यूज हर कोई कर सकता है। एज यू कैन सी दिस इज वन अनदर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। इसमें भी आप देखो इंजन पैरामीटर्स दिख रहे, आईटीटी, टॉर्क, N1, ऑयल प्रेशर, फ्यूल टेम्परेचर, ये सब इंजन पैरामीटर्स। सो ये भी हो गया इकैश का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ गो अहेड विद जायरो इंस्ट्रूमेंट्स। क्या सब है जायरो इंस्ट्रूमेंट्स? व्हाट इज IRS, व्हाट इज INS, AHRS? डू लेट मी नो। जायरो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइए, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू मीन बाय जायरो इंस्ट्रूमेंट्स? एड्रो में यूज होता है, एड्रो में यूज होता है सर। गो अहेड, कीप ऑन सेइंग, बट ऐसा वाला आंसर नहीं कि इसमें यूज होता है उसमें यूज होता है, नो। आप एग्जामिनर को क्या बताओगे हेलो कंप्लीट डिटेल में? हेलो सर। ज- यस यस, गो अहेड एनीवन। सर आवाज आ रही है मेरी सर? यस यू आर, यस यू आर ऑडिबल, गो अहेड। सर जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट के सर ओरिएंटेशंस के लिए और इंफॉर्मेशन देता है ये पायलट्स को। जैसे ये कैसे सर काम करता है, कॉम्बिनेशन होता है सर इसका। एक तो आपको सर ये एटीट्यूड इंडिकेटर बताएगा कि आप किस अभी क्या आपका एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड है। हेडिंग हेडिंग इंडिकेटर, और मतलब कहाँ पे आपकी हेडिंग है अभी। टर्न कोऑर्डिनेटर, मतलब ये सब सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब बताता है। अब इन एयरबस 320 में सर ये जो जायरोज है, RLG है, रिंग लेजर जायरो जो सर एड्रो के साथ काम करता है। एयर डाटा इनर्शियल रेफरेंस यूनिट, 3 एड्रो होते हैं सर यहाँ हमारे A320 में। मीन सर ये सब अपने जो है ना एयरक्राफ्ट को कहाँ पे एक्चुअली सर जो जायरोस्कोप है वो कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। इसमें जिम्बल रिंग्स होते हैं सर, XY एक्सिस ये ऐसे करके। तो उससे हमें वो बताते हैं कि हमारा क्या एटीट्यूड है, क्या हेडिंग है, ये सब बताते हैं सर। सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसमें। यस 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 यस, गो अहेड गो अहेड। सर जायरो में ये हाई स्पीड हाई स्पीड रोटेटिंग डिस्क होती है सर, और 2 जायरो में, जिम्बल के अंदर। हाँ ठीक है। हम्म, नॉर्मल जायरो में सर। हाँ हाँ जायरो में, और ठीक है। सर ये तो ये सर हमको इससे एटीट्यूड मिलता है। हाँ जिधर भी ये सर अ, अ, जिधर भी एयरक्राफ्ट टर्न होता है तो सर इससे हमको रेट ऑफ चेंज मिलता है। तो रेट ऑफ चेंज इनटू टाइम के साथ फिर हमको
एंगल पता चलता है सर कितना रोटेशन पे एयरक्राफ्ट वो रोटेट हुआ है। और ये एक्सीलरोमीटर भी यूज होते हैं सर जायरो, जिससे हम एक्सीलरोमीटर। आप जिससे हम लोग जो आंसर कर रहे हो ना, यस नेवर प्रॉब्लम, आप लोग आंसर कर रहे हो, तो आप कैसे आंसर कर रहे हो पता है? आपको जैरो के बारे में जितने सारे टर्म आपको आते हैं, आप सब कुछ टेबल पे रख रहे हो, बस ये है, ठीक है? सर आप उससे सारे, एक्सिलो सर हाँ जो एक्सेलरोमीटर, एक्सेलरोमीटर एक्सीलरोमीटर है होता ना है, सर, डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली तो एक्सेलरोमीटर उस होता है। सर हाँ, उससे हमें सर डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों पता लग जाती है सर। डिस्टेंस और वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे पता लगेगी? वेलोसिटी का पता करके स्पीड क्या से। करेंगे? एयर स्पीड इंडिकेटर तो हमारे पास है ना वेलोसिटी के लिए। हम्म, सर ये जो जायरो यूज करते हैं सर, ये एयरक्राफ्ट की पिच रोल भी बताता है, भी नहीं, वही जो बताता है। आप एटीट्यूड में तब जो से, आगे है। हाँ, तब से जो आप एटीट्यूड एटीट्यूड बोल रहे हैं ना, दैट यस एटीट्यूड सर। इज पिच, रोल एंड यॉ, ठीक है? यस। इसी को बोलते हैं एटीट्यूड। तो आपके एयरक्राफ्ट का पिचिंग मोशन, रोलिंग मोशन एंड याइंग मोशन ये बताता है जायरो इंस्ट्रूमेंट्स। एंड राइटली सेड बाय अल्फा ब्रेवो चार्ली कि जिम्बल्ड सिस्टम होते हैं ऑन अ रोटेटिंग डिस्क। 3 जिम्बल होते हैं, 2 नहीं, ठीक है? इनर आउटर मिडिल जो भी रहेगा, 3 जिम्बल, इसलिए उसको 3 एक्सिस जायरो बोलते हैं। नाउ इन 3 एक्सिस जायरो में हर एक जिम्बल पे एक्सेलरोमीटर लगा रहता है, ठीक है? हर एक जिम्बल पे, जो कि एक्सिस में किसी भी टाइप का चेंज या किसी भी टाइप का मूवमेंट पिक करता है, पिकअप, ठीक है? वो एक्सेलरोमीटर करता है। सो हमारा एयरक्राफ्ट रोल कर रहा है या पिच अप डाउन कर रहा है या याइंग कर रहा है, all these movement will be picked up by gyro sensor and that will be represented through gyro instrument. gyro instrument दो, ADI, HSI, ठीक है? अब आप सबने बोला था रिंग लेजर जायरो हमारे एयरबक्स में है, यस। आपके सॉरी एयरबस में है। आपके एयरबस में रिंग लेजर जायरो है क्योंकि आपके एयरक्राफ्ट में INS और IRS है, राइट? जिसमें IRS और INS नहीं है उसमें रिंग लेजर जायरो भी नहीं है, उसमें नॉर्मल जायरो है। तो आपके एयरक्राफ्ट में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम है, इसलिए रिंग लेजर जायरो बनाया गया। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम जो बनता है, उसमें एक स्पेशल ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट है जिसको बोला जाता है PBN। अब अच्छे से समझो ये टॉपिक बार बार आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक बहुत कम लोगों को ये पता भी रहता है। शेड्यूल एयरलाइन में तो मुश्किल से ही कहीं कोई बताते होंगे। ये चीज आपको जनरल एविएशन में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनरल एविएशन में एक एयरक्राफ्ट का एक एम ही होता है डायरेक्ट। बाकी आपके यहाँ जोनल एम ही होते हैं, तो उनको ये सब चीज पता नहीं रहता है। अगर होता भी होगा तो उनका प्रैक्टिस बहुत कम रहता है इन चीजों पे, तो आपको उधर ये बताने वाला बहुत रेयर मिलेगा। अभी क्या है, समथिंग इज नोन एज PBN, ठीक है? परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, एंड समथिंग वाज नोन एज सेंसर बेस्ड नेविगेशन। क्या मतलब है दोनों का? हमको अपना नेविगेशन मतलब आपके एयरक्राफ्ट का लोकेशन या आपके एयरक्राफ्ट का टर्न या रोलिंग मोमेंट या पिचिंग या योइंग मूवमेंट, ठीक है? अगर कोई सेंसर बता रहा है जो कि ग्राउंड बेस्ड है, आपके एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस, अप डाउन, क्लाइंबिंग, चेंज, ये सब अगर आपको पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट, दैट इज VOR एंड DME, तो उसको बोला जाता है सेंसर बेस्ड नेविगेशन। अब क्या हुआ कि जब कोई भी एयरक्राफ्ट यूके से यूएस जाता है, ठीक है, USA और यूके, वहां पे बीच में एक ओशन है, अटलांटिक ओशन, ठीक है, और वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। अब क्या है, यूके और USA
दोनों पैसे वाले कंट्री, इनके पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। आप जितना एज्यूम नहीं कर सकते, जितना एयरक्राफ्ट इंडिया में ऑपरेट होता होगा उतना एयरक्राफ्ट यहाँ भंगार में पड़े रहते हैं। भंगार इन द सेंस क्या बोलते हैं उसको, कबार, उसको भी क्या बोलते हैं, मैं एक्चुअल वर्ड भूल रहा हूँ, स्क्रैप बट यू कैन, स्क्रैप स्क्रैप स्क्रैप्ड, हाँ। वेरी गुड। तो वहां पे यस। स्क्रैप्ड है वो सारे एयरक्राफ्ट। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर जब कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, ठीक है, उस केस में क्या है कि ये पूरा ओशन है, ओशन में आप ग्राउंड पे किसी भी टाइप का इक्विपमेंट प्लेस नहीं कर सकते। ओशन में कैसे प्लेस करोगे, लगाओगे बह के बह जाएगा, ठीक है, तो प्लेस ही नहीं कर सकते। इस केस में रिक्वायरमेंट डाली गई पीबीएन, परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, कि आपका नेविगेशन ग्राउंड का कोई इक्विपमेंट नहीं बताएगा। कौन बताएगा, आप खुद। आप खुद इन द सेंस कि एयरक्राफ्ट इटसेल्फ विल आइडेंटिफाई दैट वेयर दे एक्चुअली आर। उसके लिए बनाया गया आईआरएस और आईएनएस। आप सबने पढ़ा होगा ना, दिस इज इंडिपेंडेंट सिस्टम। इंडिपेंडेंट किससे इंडिपेंडेंट, क्या एयरक्राफ्ट से इंडिपेंडेंट नहीं, एयरक्राफ्ट से तो उसको रिलेट रखना है, रिलेशन रखनी है। इंडिपेंडेंट है वो ग्राउंड के किसी भी इक्विपमेंट से, ग्राउंड से उसको कोई लेना देना नहीं। उसने अगर बताया कि वी आर एट अ हेडिंग ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, तो वी आर एट 30 डिग्री, बस इसी को मानेंगे, ठीक है। तो रिंग लेजर जायरो जो है दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक जायरो। ग्राउंड पे जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होगा दैट विल बी रीसेट टू 0 डिग्री, यानी जब आपका एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे प्लेस्ड है उसको वो 0 मान लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑन करोगे, विद इन 2 to 3 मिनट्स वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, उसको वो 0 मान लेगा। अब आप जहां भी बाएं दायां मूवमेंट करोगे हर चीज को वो काउंट करता जाएगा, मीन्स कितना लेफ्ट हुए कितना राइट हुए। उसका रिंग लेजर है ना, जैसे जैसे मूव करेगा उसके रिंग बीच में लगे रहते हैं, उसको वो अपने सेंसर में काउंट करता जाएगा हर बार। तो अगर इसका नेविगेशन इसने बताया कि वी आर एट 27 डिग्री, ठीक है, प्लस अगर मान लो हम पिच अप कर रहे हैं, तो अगर इसने बताया कि 3 डिग्री से हमारा पिच अप हो रहा है, देन 3 डिग्री से ही हमारा पिच अप हो रहा है, 27 डिग्री ही हमारा हेडिंग है, दैट्स ऑल। तो इंडिपेंडेंट कर दिया गया सिस्टम को, उसी को बोलते हैं पीबीएन। तो रूल क्या लाया गया कि कोई भी एयरक्राफ्ट जिसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर से फ्लाई करना है उसके अंदर इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम रहने चाहिए, नहीं है तो नहीं मिलेगा परमिशन उड़ने का, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट बनाता कौन है, फ्रांस नहीं तो यूएसए या फिर एक ब्राजील, यही सारे कंट्री है ना। तो अपने देश में जिन्होंने रिक्वायरमेंट डाला वो तो आईएनएस आईआरएस डालेंगे ही, तो एयरक्राफ्ट में आईएनएस आईआरएस बाय डिफॉल्ट रहता है। अब जिस एयरक्राफ्ट में आईएनएस आईआरएस नहीं है उसमें डाल दिया गया एएचआरएस। एएचआरएस में क्या किया गया, जीपीएस प्लस जो आपका मैकेनिकल जायरो है उन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया कि इस जायरो पे करेक्शन सिग्नल भेजता कौन रहेगा, जीपीएस। तो आप किसी किसी एयरक्राफ्ट में जब कॉलेज टाइम पे होंगे या किसी छोटे एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा जहां पे लिखा रहता था जीपीएस इज नॉट द प्राइमरी मीन्स ऑफ नेविगेशन। आप सबने ऐसा कुछ देखा कहीं इस टाइप के प्ले कार्डिंग कॉकपिट में, देखा है कि किसी ने, मेरे पास फोटो है क्या, याद नहीं है सर अभी तो, हाँ अभी बहुत तो साल हो गए। कंटिन्यूअस, हाँ अभी तो बड़े जहाज देख रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, ठीक है। सो पहले ऐसा ही लिखा जाता था जीपीएस इज नॉट द प्राइमरी मीन्स ऑफ नेविगेशन, अभी वो हट चुका है, व्हाई, बिकॉज जीपीएस इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ नेविगेशन नाउ इट इज, ठीक है। जीपीएस कैपेबल है, सब कर लेता है। So this was the introduction of INS and IRS to make your aircraft navigation independent. That's all. What is area navigation and what is VOR and what is DMA? How they works? Yes, try to tell. व्यूअर का पता है सर। बताओ बताओ, डीएमई तो और इजी है, फिर वीओआर पता है तो डीएमई तो कुछ नहीं।
ये सर डीएमई और ये वीओआर नीचे ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है सर, ग्राउंड पे लगे रहते हैं और जो वीओआर है वो चारों तरफ सिग्नल भेजते रहता है, 2 सिग्नल भेजता है सर ये। और एक रेफरेंस सिग्नल होता है, एक और ऐसे रहता है सर ऐसे 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 कौन एक्सप्लेन करता है? ऐसे कौन एक्सप्लेन करता है? इस तरह से एक्सप्लेन करने की गलती बिल्कुल मत करना एग्जाम में। ये होता है, वो होता है, नेवर। सर ट्राई ट्राई टू मैं आंसर ट्राई इन अ करूंगा। रिदम। हाँ, ट्राई टू नहीं, आंसर विल बी गिवन बाय अल्फा बराबर चार्ली ओनली। बट ऐसा करके आंसर कभी मत करना कि ये होता है, वो होता है, नेवर। उनको पता है क्या होता है, या मुझे भी पता है क्या होता है। आई वांट आंसर इन अ रिदम। फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है, देन एग्जाम्पल, ठीक है, ओके इस सर। तरह से। हाँ, गो अहेड। जितना भी पता है, इट डजेंट वीओआर मीन कि आपको बहुत सारा कुछ बोलना है। जितना ही पता है उतना ही, एक लय में, ठीक है। वीओआर सर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज होता है हम्म ये। अ, ये सर ग्राउंड पे लगा होता है हम्म एंड इट गिव्स सर रेडियल सिग्नल, ठीक है। एयरक्राफ्ट किस एंगल पर है उस स्टेशन से सर। किस एंगल पर है? हम्म, अ, ओके, सीरे चार्ली माइक, योर टर्न। यस सर, VOR stands for very high frequency omni range। सर ये जो VOR होते हैं सर, ये एक्चुअली ये ग्राउंड में रहते हैं, ये एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं एंड द एयरक्राफ्ट रिसीव्स द सिग्नल। तो जिसमें वीओआर का सर अगर, हाँ, वीओआर का अगर एयरक्राफ्ट में कुछ नहीं रहेगा तो वो सिग्नल कौन रिसीव करेगा? एयरक्राफ्ट में कौन है सिग्नल रिसीव करने के लिए? VOR अगर सर वो तो नेविगेशन सिस्टम, वो सॉरी, हम कम्युनिकेशन नहीं, नेविगेशन ही करेंगे ना सर। तो नेविगेशन में कौन रहेगा वीओआर सिग्नल रिसीव करने के लिए? कौन सा, कौन सा नेविगेशन VHF इक्विपमेंट? वीएचएफ बात कराएगा या सिग्नल रिसीव करेगा? VHF से तो सर बात होगी। बस। सिग्नल सिग्नल रिसीव चलो कौन। बताता हूँ, डीएमई बताता हूँ, रहता है नेवर। क्या? डीएमई तो डीएमई का काम करेगा, वीओआर का काम कर लेगा। चलो बताता हूँ, नो मेरा प्रॉब्लम। और अभी कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल विद वन ये ग्लास कॉकपिट नहीं है, विथ क्लासिकल कॉकपिट टाइप स्क्रीन दिख रहा है सबको? सर ये वो तो नहीं करेगा कि क्या बोलते हैं बताता हूँ, तो। बताता हूँ, डोंट वरी, ओके डोंट वरी, ओके। आई एक्सप्लेन। ये वाला स्क्रीन दिख रहा है किसी को? स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड और नॉट? लेट मी नो प्लीज। अब दिख रहा है सर, Clear, थोड़ा sir. सा दिख रहा Visible. है, क्लियर। अच्छा, ठीक है। इन दिस यू कैन सी, यहाँ लिखा हुआ है जीपीएस नॉट टू बी यूज्ड एज प्राइमरी मीन्स ऑफ नेविगेशन। मतलब आप जीपीएस पे भरोसा नहीं करोगे तो किस पे भरोसा करोगे? ये दिया ना डंडी, आरएमआई, ठीक है, ये रहा आपका जायरो, ठीक है, और ये रहा आपका अल्टीमीटर, ये रहा आपका वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, और ये रहे आपके इंजन के इंस्ट्रूमेंट सारे छोटे छोटे छोटे। देखो टॉर्क लिखा है ना, आईटीटी लिखा है, और जो भी लिखा है मुझे दिख भी नहीं रहा है। कहने को तो मैं सभी बता ही सकता हूँ, ये फ्यूल फ्लो है, नीचे वाला आपका ऑयल प्रेशर है, ठीक है, फिर ये वाला है टॉर्क, ये है प्रोपेलर का आरपीएम, ये है आपका इंजन का आरपीएम, ऊपर है आईटीटी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स देयर। नाउ दिस वन इज आरएमई, दिस वन इज द डीएमई, आरएमआई, डीएमआई, डीएमई, ठीक है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है। अभी वीओआर जो आप बोल रहे हो ना, वीओआर, ठीक है, क्या होता है?
वीओआर का ट्रांसमीटर रहता है ग्राउंड पे, रिसीवर रहता है एयरक्राफ्ट में, ठीक है। दो पार्ट होते हैं। अभी मैंने तुरंत बताया ना, दैट इज सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट, वीओआर एंड डीएमई। तो एक ग्राउंड पे रहेगा, एक हवा में रहेगा, तभी तो वो सिग्नल मैच कराएगा। और वीओआर से आप अपने एयरक्राफ्ट को लोकेट कर सकते हो इन रेफरेंस विद एनी वीओआर स्टेशन, जो कि जनरली एयरपोर्ट्स पे लगे रहते हैं। एयरक्राफ्ट में वीओआर रिसीवर होता है, और पुराने एयरक्राफ्ट में आरएमआई, रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेटर, वीओआर सिग्नल रिसीव करते थे, ये वाले इक्विपमेंट। डीएमई डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट लाइक वीओआर ओनली। डीएमई के एंटीना ग्राउंड पे लगे रहते हैं, ट्रांसमीटर एयरक्राफ्ट में रहते हैं, रिसीवर। तो ये आपका डीएमई डिस्टेंस मेजर करके बताता है इन एन एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब दूसरा हमने एक वर्ड यूज किया था, एफडीएस, फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम। जब जायरो इक्विपमेंट, आप देखो इधर दो डिस्प्ले है, राइट, और इधर साइड एक ही डिस्प्ले है, और ऊपर एक एडीआई है, दिख रहा है, ये है एडीआई एक्चुअल में, एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर। सो क्या किया गया, डिस्प्ले बनाने से पहले जो कंप्लीट डिस्प्ले रिप्रेजेंटेशन था, एफिस, उसके बनाने से पहले डिस्प्ले का डेवलपमेंट हो चुका था। लाइक अभी जो हम स्मार्टफोन यूज करते हैं तो फुल स्क्रीन रहता है डिस्प्ले। उससे पहले कुछ दिन हम लोग कीपैड यूज करते थे, फुल बटन। फिर उसके बीच में आपने एक छोटा सा टाइम देखा होगा जहां पे स्क्रीन टच फोन आते थे, कि आपके पास एक स्टिक रहता था, उससे आप स्क्रीन को टैप करते थे, ठीक है। अभी टच करते, उस टाइम पे टैप करना पड़ता था। और एट द सेम टाइम यू हैड अ की ऑल्सो, कि बटन भी रहता था, टच स्क्रीन भी रहता था। तो इसी टाइप से जो स्क्रीन का डेवलपमेंट हुआ था इन एविएशन, तो एनालॉगस से डिस्प्ले बनाने में अलग अलग मॉनिटर बनाए गए। ये एक मॉनिटर है अपने आप में, ठीक है, टीवी जैसा। तो ये बनाया गया अलग अलग। तो जब स्टार्टिंग में एडीआई को ईएडीआई, इलेक्ट्रॉनिक एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर, तो ये है ईएडीआई ऊपर वाला डब्बा, नीचे वाला स्क्रीन ईएचएसआई। जब ईएचएसआई और ईएडीआई लाया गया, उसको बोला गया एफडीएस, फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम। ये फ्लाइट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और देखो उसमें भी रहते थे प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, ये दोनों पीएफडी, ये भी है पीएफडी। ये देखो मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, ठीक है। सो लाइक दैट ओनली इट वर्क्स। नाउ व्यूअर डीएमई, आई हैव टोल्ड कि एयरक्राफ्ट में रिसीवर लगे रहते हैं, ग्राउंड पे ट्रांसमीटर लगे रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, अकारस हमने कई बार डिस्कस किया है, अब नहीं करूंगा। जीपीएस कई बार कर लिया है, सारे एग्जांपल्स अब नहीं करूंगा। व्हाट इज जीपीडब्ल्यूएस एंड व्हाट इज रेडियो अल्टीमीटर? जीपीडब्ल्यूएस सर गो अहेड। सर जीपीडब्ल्यूएस जीपीडब्ल्यूएस तो ओके, बलवान ग्राउंड आप बोलिए, प्रोक्सिमिटी कोई नहीं, वार्निंग आप बोलिए। सिस्टम सर। Anyone can go ahead, yes. ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम। हाँ, इसमें सर ये इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रहता है सर, ट्रांसीवर जीपीडब्ल्यूएस ठीक का। है, ठीक है। और सर ये एयरक्राफ्ट के बॉटम साइड में रहता है। ये सर सिग्नल नीचे भेजता है, और फिर जो वही सिग्नल नीचे से स्ट्राइक होके रिसीव होता है, तो उससे पता चलता है सर कि एयरक्राफ्ट नीचे से क्या होके रिसीव होता है? रिफ्लेक्ट होके, हाँ हाँ, ठीक है। नीचे से रिफ्लेक्ट होता है, फिर रिसीव होता हाँ, है ठीक है। एयरक्राफ्ट। हाँ, तो उससे पता चलता है कि वो कितने डिस्टेंस पे है सर एयरक्राफ्ट से, हाँ, और ठीक, नीचे क्या है, ठीक, टेरेन है वो। वेरी गुड, ठीक। चलो, पहले क्या था, टेरेन अवॉइडेंस वार्निंग सिस्टम, टीएडब्ल्यूएस, और रेडियो अल्टीमीटर, दो अलग अलग इक्विपमेंट बनाए गए, ठीक है। ये सिर्फ आपको टेरेन से क्लियरेंस बताता था, और रेडियो अल्टीमीटर आपको
ग्राउंड का हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेडियो आएगा रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो हाइट ऑब्जर्व करके बताता था रेडियो अल्टीमीटर। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? बार्किंग ऑफ डॉग्स, इसको यही युद्ध कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है। नाउ क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, सो अलग अलग सिस्टम बनाए गए एज अ रेडियो अल्टीमीटर एंड टीएडब्ल्यूएस। फिर उन दोनों को मर्ज कर दिया गया जीपीडब्ल्यूएस, या फिर अभी आप सबने कहीं कहीं सुना होगा उसको बोलते हैं स्काई वॉच, या फिर टीएडब्ल्यूएस प्लस, टीएडब्ल्यूएस प्लस प्लस। हनीवेल का आप लोग मंथली करते होंगे जीपीडब्ल्यूएस डाटा अपडेट, हनीवेल मार्क 7 मार्क 8 ये सब आता है। अब इसमें क्या है, बेसिकली जीपीडब्ल्यूएस मोड एक्टिवेट होता है बिलो 2500 फीट, उसके ऊपर रहता है टीएडब्ल्यूएस, टेरेन अवॉइडेंस वार्निंग सिस्टम। जनरली ये एक पीएसआर, अगला टॉपिक अपना वही है, पीएसआर बेस्ड सिस्टम है। पीएसआर मींस प्राइमरी सर्वेलेंस रडार। कोई भी रडार या कोई भी रेडियो इक्विपमेंट जिसमें जो सिग्नल गया अगर वो रिफ्लेक्ट है वापस आया, तो इस वाले थ्योरी से रिलेटेड जितने भी रेडियो इक्विपमेंट अवेलेबल होंगे वो कहलाएंगे प्राइमरी सर्वेलेंस रडार। ठीक है, जो सिग्नल गया वही टकरा के आया, तो रेडियो अल्टीमीटर पीएसआर, डीएमई पीएसआर, ठीक है, आपका वेदर रडार पीएसआर, ठीक है। फिर आएगा सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार, जाएगा जिस फ्रीक्वेंसी से आएगा किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी से, ट्रांसपोंडर, ठीक है, गया 1030 मेगाहर्ट्ज, रिसीव हुआ 1090 मेगाहर्ट्ज, सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार। क्या हुआ, आपने क्वेश्चन भेजा, इंटरोगेशन सिग्नल भेजा, ग्राउंड पे उसको होल्ड किया गया, रीड किया गया और रिप्लाई किया गया किसी दूसरे सिग्नल से, तो वो कहलाया सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार। कि आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके नहीं आया, किसी प्रोसेसर ने उसको होल्ड किया, उसका आंसर टाइप किया और आपको नए फ्रीक्वेंसी से भेजा, तो दैट इज सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार सिस्टम। तो आपके ट्रांसपोंडर, ठीक है ना। वेदर रडार, वेदर रडार वेरी सिंपल, आपको वेदर रडार का ही फोटो दिखाया हुआ था मैंने ऑन द स्क्रीन इधर। वेदर रडार के फंक्शन सिंपल है, दैट इज प्राइमरी सर्वेलेंस बेस्ड रडार, जो कि आपको फ्रंट में वेदर का क्या है कंडीशन वो बताता है, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस इज द टेस्टिंग ऑफ वेदर रडार, आपको कहीं दिख भी रहा होगा, टेस्ट मोड में है वेदर रडार, इधर टेस्ट मोड में WXR सिस्टम। सो दिस इज वेदर रडार, मीन्स आपको कंटामिनेशन ऑफ, नॉट कंटामिनेशन, पर्सिपिटेशन, पर्सिपिटेशन मीन्स जमाव बोलते हैं, तो सामने कितने वाटर ड्रॉपलेट्स जमे हुए हैं वो बताता है आपको वेदर रडार। अगर कि आपके अहेड पे क्लाउड का क्या है, वाटर स्टोरेज कम सम है या ज्यादा है या हेवी है, सब वेदर रडार बताएगा, ठीक है। आकाश एंड टीकास वेरी सिंपल, दैट ऑल्सो गो थ्रू द स्क्रीन, ठीक है। अभी देखो किधर गया, हाँ, आकाश और टीकास ट्रैफिक कोलिजन एंड अवॉइडेंस सिस्टम, वो जब स्टार्टिंग में बनाया गया था, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था एक दिन, राइट, रिमेम्बर, एयरप्रॉक्स बताते टाइम। यस सर। हाँ, सो कुछ नहीं, आपके आसपास कितने सारे ट्रैफिक हैं, किसका क्या थ्रेट है, is that too close, is that mild, is that on a safe distance, along with the arc, arc में ये रहता है डिस्टेंस 5 10 15 20, कि कौन सा ट्रैफिक आपसे कितना दूर है, दैट इज नोन एज आकाश और टीकैस। फिर ईएलटी हमने बताया ही, आईएलएस हमने मार्कर बीकन एक बार एक्सप्लेन किया हुआ ही है, ट्रांसपोंडर्स भी बताया, स्पेशल ऑपरेशंस आज बता ही दिया, पीबीएन और एक सेकेंड, स्पेशल ऑप्शन में क्या छूट रहा है, पीबीएन और अपना ये आरवीएसएम। पीबीएन तो आज भी एक्सप्लेन किया, आरवीएसएम भी पहले ही कर ही चुका है, वो तो स्पेशल है ही। ईडीटीओ, इटॉप्स और आरएनपी ये बता देता हूँ। चलो, ट्रांसपोंडर्स बहुत पॉपुलर टॉपिक है, आप लोग खुद से पढ़ लेना।
चलो एक फाइनल बता ही दो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोंडर, क्या काम करता है एक्चुअल ट्रांसपोंडर और कितने सारे मोड्स हैं ट्रांसपोंडर के? ट्रांसपोंडर से ट्रांसमिट रिस्पॉन्ड करता है, और इंटेरोगेट करता है। किसको किसको? सर सर अगर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट है तो सर उससे इंटेरोगेट कर सकता है। और ग्राउंड स्टेशन से कर तो इंटरोगेट का ग्राउंड मतलब क्या पर हुआ? इंटरोगेट मतलब उसको सर कुछ पूछना हो तो वो कर सकता है कि पूछते अपनी हो पोजीशन। ट्रांसपोंडर का यूज करके कभी? कभी पूछा है? यस नो एनीथिंग, कभी पूछा ट्रांसपोंडर का? तो मेंटेनेंस करते होगे ना कभी ना कभी तो। ओके, कमिंग टू द पॉइंट। यस सर। हाँ हाँ, बोलो, पूछा है कभी? यस एटीसी चेक करने के लिए जब IFR 6000 का यूज करते हैं तब इसका टेस्ट करते हैं, टेस्ट ट्रांसपोंडर मोड करते ए हैं, वेरी गुड। मोड। टोटल 19 टेस्ट रहते हैं, राइट? 19 के यस। आसपास। 3 हाँ पेजेस वाले, हाँ ठीक है। ठीक है, वो तो हो गया सर टेस्टिंग। हाँ 4 टाइप के रहते हैं सर, एक हाँ क्वेश्चन हाँ था सर। हाँ हाँ सर जब हम टेस्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ द हाँ हाँ। IFR 6000, तो क्या एयरक्राफ्ट इनका मोड क्या होता है उसका? एयर मोड होती है या फिर ग्राउंड मोड ही रहता है? एयर रहता है, वाव स्विच दबाने बोलता है ना। हाँ सर। हाँ, तो एयर मोड में, ग्राउंड पे नहीं एयर। होता है। प्रोसीजर में बोलता है आपका एस्टेब्लिश एयर मोड। ठीक है, आपके वाव स्विच जो होते हैं, वेट ऑन व्हील स्विच, उसको बोलता है प्रेस कर दो। प्रेस कर दोगे तो दैट विल फील लो वेट, सॉरी, दैट विल फील नो वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑन व्हील। वेट ऑन व्हील होता है ना वाव, तो व्हील हाँ। जीरो वेट फील करेगा, तो उसको लगेगा एयरक्राफ्ट को कि वो हवा में है। तब आप ट्रांसपोंडर ऑन करोगे तो वो सिग्नल एक्टिवेट करेगा। जब तक ग्राउंड पे रहेगा, ट्रांसपोंडर ऑन कर दो, एक्टिवेट ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोंडर क्या होता है? यस, इट डू इंटेरोगेट, बट ये इक्विपमेंट का इंटेरोगेशन है, ये लाइव इंटेरोगेशन नहीं है। ये सब आपस में ही खेलते रहते हैं। क्या रहता है ट्रांसपोंडर में? ट्रांसपोंडर में बेसिकली योर एयरक्राफ्ट डिटेल्स, ठीक है, दैट इज योर एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन। जो ट्रांसपोंडर बनाया गया था पहले, ये बनाया गया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। फो मतलब दुश्मन, फ्रेंड मतलब दोस्त। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो कैसे? सबको बोला गया था कि अपना अपने एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन मार्क्स ट्रांसपोंडर पे चढ़ा दो और ट्रांसपोंडर को ऑन रखो। दूसरे टर्म में ट्रांसपोंडर को कुछ लोग रडार भी बोलते हैं कि रडार ऑफ रखो, रडार ऑन रखो। तो अगर किसी का रडार ऑन है यानी ट्रांसपोंडर ऑन है, तो उसका रजिस्ट्रेशन मार्क के थ्रू हम उसको लोकेट कर लेंगे। फ्लाइट रडार पे हम कैसे एयरक्राफ्ट आइडेंटिफाई करते हैं? बाय द ट्रांसपोंडर ऑन ओनली। ट्रांसपोंडर ऑफ कर लेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, अब तो ट्रांसपोंडर में मोड थे ए, सी, एस। ए में क्या था? एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन डिटेल ओनली, कि वीटी ये, वीटी वो, इंडिगो ये, इंडिगो वो, लाइक दैट। फिर आया मोड सी। मोड सी में क्या रहा? अल्टीट्यूड डिटेल। ठीक है, तो कुछ दिन तक ए और सी दोनों को मिला के यूज किया गया। फिर आ गया मोड एस। मोड एस में एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन, उसका नाम, किस एयरपोर्ट से डिपार्ट करेगा, कितने बजे अराइवल है, अपकमिंग फ्लाइट प्लान, कल कहां से गया था, कल कहां जाएगा, लाइव ट्रैकिंग। ठीक है, ये सब डालेंगे फ्लाइट रडार पे। आप लोग फ्लाइट रडार पे इसलिए देख पाते हो ना कि दिल्ली से जो एयरक्राफ्ट चली थी कितने बजे पहुंचेगा मुंबई। क्यों? क्योंकि उसमें मोड एस ट्रांसपोंडर है। मोड एस ट्रांसपोंडर हटा दिया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो ये सब डाला गया मोडेस्ट में फीचर, ताकि उसको ट्रैक कर सके फ्रॉम द ग्राउंड। तो एयरक्राफ्ट में जो होता है,
Basically they do interrogate, yes they do interrogate, but interrogation is system wise. आप पर्सन वाइज या पर्सनली उसको नहीं कर सकते ऑपरेट, वो ऑटोमेटिक है कि सिग्नल जो क्वेरी सिग्नल जाएगा उसको बोलते हैं इंटरोगेशन, और जो रिस्पॉन्स सिग्नल आएगा उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, दैट्स ऑल। तो क्वेरी सिग्नल और रिस्पॉन्स सिग्नल पता नहीं चलता है, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बस ये एयरक्राफ्ट सर्च मारो, आपको फ्लाइट रडार पे लाके दिखा देगा, इसी को बोलते हैं इंटरोगेशन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके बाद आरवीएसएम हमने पढ़ा, आरवीएसएम हम आरएनपी, आरएनपी मतलब होता है रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस। ये भी लगाया गया नेट एचएलए के पास कि अगर आपके एयरक्राफ्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्लाई करना चाहता है तो उसमें कम से कम इतने सारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, आरएनपी का ही दूसरा नाम होता है एमएनपीएस, मिनिमम नेविगेशन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आपके एयरक्राफ्ट में कम से कम इतने सारे नेविगेशन इक्विपमेंट होना चाहिए, तब आप यूके से यूएस फ्लाई कर सकते हो ऑन हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, हाई एल्टीट्यूड एविएशन पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि दो एयरक्राफ्ट कितना सेफ डिस्टेंस आपस में मेंटेन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आरएनपी के कैटेगरी पे। आरएनपी 4 मतलब दो एयरक्राफ्ट लिटरली 4 नॉटिकल माइल के सेपरेशन से ऑपरेट कर सकते हैं। जनरली हमारा क्या रहता है 15 नॉटिकल माइल कोई नहीं रहेगा अगल बगल, लेकिन आरएनपी जितना ज्यादा, तो आरएनपी को क्या किया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया अलॉन्ग विथ ऑटो पायलट एंड एएचआरएस, दोनों एक दूसरे का फ्लाइट प्लान और एटीट्यूड मॉनिटर करते रहेंगे। तो 4 नॉटिकल माइल के सेपरेशन पे भी ये दोनों एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। आरएनपी 3 3 नॉटिकल माइल, अब तो आरएनपी 0.2 0.4 0.6 ये सब आ गया है कि 200 फीट के डिस्टेंस से भी दो एयरक्राफ्ट अच्छे से ऑपरेट करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन फ्लाइट वगैरह होता है, जो स्पोर्ट्स वाले फ्लाइट होते हैं अदर देन पैसेंजर यूज, वो सब आरएनपी का यूज करके ऑपरेट करते हैं। फॉर्मेशन फ्लाइट मतलब कोई सिंबल बना के जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा त्रिशूल बना, कल परसों आपने देखा होगा ना कि फाइटर फ्लाइट त्रिशूल बनाते हैं, कोई कोई और भी कुछ डिजाइन बनाते हैं, तो ये सब एक सेफ डिस्टेंस पे आरएनपी के थ्रू लिंक रहता है कि हमारा इतना डिस्टेंस है, तुम्हारा इतना डिस्टेंस है, आगे चलेंगे। ठीक है, so that is RNP, required navigation performance। EDTO and ETOPS, अभी ETOPS नहीं है, अभी हम लोग सीधा बोलते हैं EDTO। ETOPS का ही आगे का नाम पड़ गया EDTO। ठीक है, EDTO इज द अपकमिंग वर्जन ऑफ ETOPS। 2017 से पहले ETOPS बोला जाता था, 17 के बाद EDTO बोला जाता है। एक्सटेंडेड ट्विन इंजन ऑपरेशंस, एक्सटेंडेड डाइवर्जन टाइम ऑपरेशंस। ठीक है, अब क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो एक इंजन फेल होने के बाद भी आप कितने देर तक और हवा में एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हो। जैसे मान लो कि आपको क्या कहते हैं, दिल्ली से वाराणसी जाना है, ठीक है, दिल्ली से वाराणसी जाना है, इसमें आपने क्या किया कि लखनऊ के सॉरी वाराणसी मीन्स प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास आपका दो इंजन में से एक इंजन खराब हो गया, तो रिटर्न तो मारोगे नहीं दिल्ली, इतना लेंथ है, या फिर आसपास किसी दूसरे एयरपोर्ट पे जाके लैंड करोगे, अल्टरनेट पे या मेन एयरपोर्ट पे ही। तो जो इंजन फेल होने के बावजूद भी आपने एयर टाइम स्पेंड किया एक्स्ट्रा, कितना एयर टाइम आप और एक्स्ट्रा बिता सकते हो, ठीक है, इंजन फेल होने के बाद भी, वो आता है EDTO। इसका डीजीसीए से अप्रूवल होता है, स्पेशली सारे स्पेशल ऑपरेशंस के अप्रूवल डीजीसीए से होते हैं स्पेशली। तो क्या होता है, जनरली आपका मैन्युफैक्चरर 120 मिनट्स 2 घंटे तक का सिंगल इंजन ऑपरेशन अप्रूव करता है, लेकिन डीजीसीए मैक्सिमम 90 मिनट्स का 1.5 घंटे तक का सिंगल इंजन ऑपरेशन अप्रूव किया हुआ है। अगर ग्राउंड पे आपका या इनिशियल फ्लाइट फेज में दो में से एक इंजन खराब हो जाता है, तो आप एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ग्राउंड पे या इनिशियल फ्लाइट फेज में रिटर्न आइए। ऑन रूट, ऑन रूट मतलब रास्ते में, ठीक है, रास्ते में अगर फेल हो जाता है, ये उस केस का प्रोविजन। ऐसा नहीं कि ग्राउंड पे एक इंजन खराब तो एक ही पे उड़ा ले, नहीं, फिर नहीं, हवा में अगर आपका खराब हो गया, ये उसका प्रोविजन। क्लियर?
ठीक है? यस, नो, एनीथिंग? So this was all about questions of aviation general. आप लोग थोड़ा प्रिपेयर करके आइए तो पढ़ाने में और मजा आएगा, ट्रस्ट में। नहीं तो क्या होगा ना कि आई सेड यस्टरडे कि पूरा का पूरा कॉलेज वाला टॉपिक शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ाना पड़ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। बिकॉज यहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, ठीक है? ट्रेनिंग में होता है कि आप कुछ प्रिपेयर्ड हो, थोड़ा सा हम आपको एड ऑन कर देंगे, दैट्स ऑल। तो थोड़ा सा और पढ़ के आइए, डिटेल में मेहनत करिए तो पढ़ाने में और मजा आएगा, ठीक है? तो कल हम लोग देखते हैं रेगुलेशन वाले क्वेश्चन, लास्ट में देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कल रेगुलेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग फिर से इसका आंसर कुछ ढूंढ ढांड के लाओ, थोड़ा सा पढ़ के आओ, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? कल, और कल ही प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 1 के भी कुछ क्वेश्चन का। So that's all for today. I'm closing this meeting for today. We'll see you tomorrow, same time, हाँ? तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो पार्ट 1 के, हाँ, पार्ट 1 के क्वेश्चन सेट से कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, डू लेट मी। यस, यस, अल्फा ब्रावो चार्ली। और सर ये जो आपने बताया ये एनएफ है सर, ये अगर इतना इंफॉर्मेशन भी हम बोल पाते हैं बहुत ज्यादा इनफ है, मैंने तो जितना बताया यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, वो तो मैंने आपको मेन कीवर्ड्स बताए ना, मेन स्टेटमेंट। जब आप कहीं भी एक्सप्लेन करते हो इन एन इंटरव्यू, तो आप उसको किसी ना किसी लैंग्वेज में ढाल के बोलते हो, राइट? दीज मच इंफॉर्मेशन आर मोर देन इनफ। इतना तो जनरली किसी को पता भी नहीं रहता है बताने लायक, ठीक है? पता रहता है, इतना एक्सप्लेनेबल नहीं रहता है कोई, इतना भी बता दे तो बहुत भारी चीज, ठीक है? आप इसका वो चलो, ऐसे आपको अगर, हाँ, बोलो 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 बोलो। और वो ऐसे भी करते हैं सर, मान लो हमसे पहले किसी ने इंटरव्यू दिया, उसने कोई सिस्टम अंदर से एक्सप्लेन कर दिया मान लो। ये तो जनरल रिक्वायरमेंट है, ये तो रहेगा ही, बिल्कुल। आपसे पहले नहीं, कभी भी अगर उनको पूरा सिस्टम आता भी है, तो वो एक्सपेक्टेशंस उनकी हाई हो जाती है, बिल्कुल, कि वो इतने अच्छे से समझा के गया, आपको आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो बिल्कुल रखते हैं, ठीक है? बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपको कभी। नेगेटिव इम्पैक्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं होता, उनको ये पता होता है कि ऑल आर डिफरेंट, ठीक है? जैसे मान लो कि मुझे बोला जाए आंसर करने के लिए, तो मैं तो मस्त कहानी बना बना के बोलता हूँ, ठीक है? दैट इज माई स्टाइल ऑफ आंसरिंग। इवन आई स्ट्रगल समटाइम इन मेकिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश, बट फिर भी जो मुझे, अगर थोड़ा सा भी कहीं मैं अटकूंगा, या अगर मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे थोड़ा कम आता है, तो मैं तो मस्त इंग्लिश में सेंटेंस बना के घुमा घुमा के बोलता हूँ। तो दैट इज माय वे ऑफ आंसरिंग। और जो मुझे क्लियरली आता है, उसको तो मैं ज्यादा डिटेल में और लंबे टाइम तक समझाता हूँ। तो दैट व्हाट एवरीवन डू, बट व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग, यू शुड हैव योर ओन वे। बट रास्ता आपका जो भी हो, सबसे बड़ी चीज है, अटको बिल्कुल नहीं। जितना ज्यादा आप अटकोगे, हिकअप्स लोगे, स्टमरिंग होगा, उतना ज्यादा आप मौका दोगे डाउट करने का टू द एग्जामिनर, ठीक है? और कभी भी एक्सप्लेन करते टाइम रफ स्टेटमेंट का यूज नहीं करना है। रफ स्टेटमेंट इन द सेंस कि सपोज ही टोल्ड कि जीपीएस क्या है आपके एयरक्राफ्ट में, तो ऐसा नहीं बिल्कुल बोलने का कि सर जीपीएस जो होता है उसमें 2 एलआरयू होता है, एयरक्राफ्ट में लगा होता है, कॉकपिट में इंडिकेशन लेते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं, ठीक है? वो उनसे बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये होता है, वो होता है, इतना होता है। एक रिदम दिखना चाहिए। पहले डेफिनेशन बता लेना, नंबर ऑफ एलआरयू कहाँ कहाँ लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, प्लस एग्जाम्पल कि सर मैं जिस एयरक्राफ्ट पे काम करता हूँ उसमें जीपीएस के इक्विपमेंट्स हैं, 2 एलआरयू लगे हैं, और जो इंडिकेशन आता है कॉकपिट में, थ्रू दैट जीपीएस के, अगर आपको पार्ट नंबर याद है एलआरयू के तो बोल दो, जीपीएस 4000 लगे होते हैं। एंड जीपीएस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई आवर एयरक्राफ्ट बाय द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ऐसे करके एटलीस्ट, ठीक है? तो तो ये एक रिदम में टॉपिक आंसर। कहाँ से पढ़ते हैं? क्या हुआ, क्या हुआ? ये सर टॉपिक सही कहाँ से पढ़ने हैं सर वैसे? अच्छा, कहाँ से पढ़ने हैं? पढ़ने तो आपको जो कॉलेज टाइम का बुक था, माइक टूली, रिमेम्बर?
उसमें सब कुछ इजी लैंग्वेज में दिया गया है। माइक टूली का रेडियो एंड नेविगेशन सिस्टम में सब कुछ इजी लैंग्वेज में दिया गया। बीइंग एन एवियोनिक्स स्टूडेंट, आपको माइक टूली के जो बुक है, या फिर अब लोग तो मतलब कॉलेज पास कर चुके हैं, खैर डिस्टेंस हो गया होगा आप लोगों का, डिस्टेंस इन द सेंस की टाइम गैप हो गया होगा फ्रॉम द बेसिक कॉलेज नॉलेज एंड रियल फील्ड इन्वायरमेंट। फिर भी अगर आप रियल फील्ड के भी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको पढ़ना है तो माइक टूली का रेडियो नेविगेशन वाला बुक है, वहां से पढ़ना पड़ेगा। और ये सब क्वेश्चन वो जरूर से जरूर पूछेगा, क्योंकि आप एक B2 के टेक्नीशियन हो या B2 के इंजीनियर हो एवियोनिक्स के, तो फंक्शन तो आपके अपने एयरक्राफ्ट का जानो ही चाहिए। अगर आपके पास आपके एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल है, आप वहां से पढ़ लो, वहां पे भी सारा इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। बट वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको बेसिक नहीं पता चलेगा AMM में। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो माइक टूली का बुक है रेडियो वाला, ठीक है। हम्म। ओके। तो ये सब सोर्स हैं आपके पढ़ने के। और ये जो क्वेश्चन मैंने 15-17 लिखे थे, ये सब तो बहुत जनरल और आइडियल क्वेश्चंस हैं, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलो देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो, ठीक है। विल सी यू टुमारो देन, सेम टाइम 9:30। अगर आपको पढ़ना एज आई टोल्ड, वहां से पढ़ो ही, प्लस थोड़े से इस वाले क्वेश्चंस पे भी नजर डालो, जो अपना कहाँ गया पार्ट 2 का क्वेश्चंस, इधर गया, जस्ट अ सेकंड, ट्रायलिंग पे ही है। हम्म, हम्म, हाँ इस वाले पे थोड़ा थोड़ा नजर डालो, आधे से ज्यादा तो इसमें भी मिल जाएंगे, देखो। ठीक है, जी सर। ओके। ओके, तो और कल ये हम भी लोग है ना रेगुलेशन, हाँ हाँ, सर, यहाँ से पढ़ लेंगे, ये भी एनएफ है जो PDF आप वाले। एनफ एनफ वर्ड पे आंसर करना डाउटफुल रहता है हमेशा, ठीक है। बिकॉज कई बार जो एग्जामिनर होते हैं वो हमेशा आपसे प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। तो प्रैक्टिकली फील्ड में काम करते करते, जैसे मान लो कि वो बोलेंगे कि आप टेक्नीशियन हो, कब उनका रास्ता बियोन के साइड भटक जाए ये भी गारंटी नहीं दे सकता। इनफ इन द सेंस, आई ऑलवेज सेज कि अगर आप एक एक्टिव मेंटेनेंस पर्सनल हो तो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के बारे में 10% 20% इंफॉर्मेशन भी इनफ होता है, अगर आपको आंसर करने का तजुर्बा है। तजुर्बा इन द सेंस कि आप एक्सपीरियंस्ड हो कि कैसे इंटरव्यू क्रैक्स किए जाते हैं, कैसे आंसर दिए जाते हैं, तो आपके लिए इनफ है वो चीज, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको, फॉर एन जनरल एग्जांपल, कि आपको 1 किलो आटा दिया, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे उसको 10 रोटियां बना देंगे, कुछ लोग होंगे उसमें थोड़ा सा प्याज व्याज काट के पराठा बना देंगे, कुछ लोग होंगे कि उसको थोड़ा सा और गीला करके चीला टाइप का डोसा वगैरह बना देंगे। सो एवरी वन इज आंसरिंग दियर ओन वे। अब किसका मटेरियल एनफ रहेगा ये डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा टेस्टी पका रहा है। तो टॉपिक वो आपसे यही 5-6 ही पूछेंगे, आप उनको कितना आंसर दे पा रहे हो और हाउ दे आर सेटिस्फाइंग विद योर रिप्लाई, दैट अंडरस्टैंड्स एज एनफ, ठीक है। फॉर माय एक्सपीरियंस, मैंने तो आज तक जैसा भी, एज आई टोल्ड कि मेरा तो खैर इंटरव्यू और इंटरेक्शन वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा ही बेटर है फ्रॉम फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं तो सेटिस्फाइड रह, मेरे से कोई भी इंटरव्यूअर या मेरे से जो भी एसेसर आज तक मैंने इंटरेक्ट किया है वो सेटिस्फाइड रहते हैं मेरे आंसर टाइप से। वाई? बिकॉज मैं आंसर थोड़ा घुमा के देता हूँ, मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बोल के अपने आप को वहां पे लो रखता ही नहीं हूँ। अगर मुझे 2-4 पॉइंट भी आएंगे ना, तो मैं उसको स्टेटमेंट में मोल्ड करके लंबा घुमा के दूंगा आंसर। मैं डायरेक्ट कट टू कट 2-4 लाइन बोलता ही नहीं हूँ। तो इससे एक बेनिफिट होता है कि दे अंडरस्टैंड कि यस, यू आर अ ट्रू प्रोफेशनल हु ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ डायरेक्टिव वे, एक आप रास्ते के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तो वो भी इफेक्टिव होता है। कभी आपको 4 पॉइंट ही आते हैं
बट बोलो उसको 5 मिनट में। अब क्या क्या बोलना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। सो नेवर तब तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि जब भी मैं आपसे पूछता हूँ या सचिन से, यू टू हैव टू, आवाज नहीं आ रही सर आप। कि आपका वो कहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है। मैं आप तो, हाँ थोड़ी सी आवाज मेरी कट रही होगी अभी। मैं आप दोनों से इसलिए बोलता हूँ कि आप वैसा आंसर करना चाहो जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है, ताकि मैं ये पहचान सकूं कि आप एक अच्छे आंसर करने की कोशिश में कितना स्टैंडर्ड तक परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है। तब मैं कुछ ना कुछ ऐड कर पाऊंगा। अब आप ही अगर रफ आंसर मेरे को प्रेजेंट करोगे जो कि एक क्या कहते हैं नॉर्मल आंसर टाइप है, तो मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि आपका टिल्ट किस साइड है, आप कितने स्टेज तक आगे बढ़ चुके हो। ठीक है। तो आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करो सो दैट आई कैन गाइड यू समथिंग ऑन टू दैट, राइट। ओके। चलो कल मिलते हैं। आप लोग रेगुलेशन के टॉपिक और खास करके पढ़ के आओ। अगर आप पढ़ के आओगे तभी आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, नॉलेज रहेगी। और आजकल तो सबसे बड़ा सोर्स है गूगल। कुछ नहीं मिलता है, गूगल पे टाइप करो, मोर और लेस 60 से 70% आंसर तो वो ढूंढ के ला देगा। ठीक है, गूगल। तो कल के लिए अपना टॉपिक है रेगुलेशंस वाला। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस पे नजर मार के आइए। बुक्स नहीं मिलते हैं, गूगल से ढूंढिए, पक्का मिलेगा। ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स के आंसर्स ढूंढ के लाइए, पता करके लाइए। और कल एटलीस्ट ट्राई करना कि योर ट्राई टू गिव योर आंसर इन योर बेस्ट पोटेंशियल, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको और कितने एडिशन की जरूरत है या ओके है या नहीं। ठीक है। ये सर। ओके। चलो देन, गुड नाइट फॉर टुडे, सी यू टुमारो एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट। राइट सर। गुड नाइट सर।